Let us do some miscellaneous exercises on the DTFT. जैसे सपोज अगर हमारे पास प्रॉब्लम है ये h omega is given. H omega means transfer function is given as 1 minus a e raised to power minus j omega minus 1. Suppose h omega is this, and we need to find out its transfer function. We need to find out its transfer function. Sorry, impulse response. Impulse response. Impulse response निकालना है. Transfer function is given. This is transfer function. Transfer function is given as this. Transfer function is this xj omega, and we need to find out its impulse response. So how to do that? We know that h omega is equal to 1 by 1 minus a e raised to power minus j omega. Okay, since it is can be expanded by binomial expansion as this a e raised to power minus j omega plus a square e raised to power minus j omega 2 omega plus a raised to power 3 e raised to power minus j 3 omega, and so on. Can be expanded like this series. And we also know that by definition what will be h omega? By definition h omega will be DTFT का definition क्या होता है? n changing minus infinity to infinity h n e raised to power minus j n omega. Okay, by definition DTFT is this. This is the definition of DTFT. Definition of DTFT. If we compare these two expressions, we can find out Hn. What will be Hn? Hn जो है, क्योंकि नेगेटिव साइड पे ही सिग्नल है, ये नेगेटिव साइड पे ही है सिग्नल. नेगेटिव मतलब इसमें टर्म्स आ रहे, नेगेटिव माइनस, तो पॉजिटिव साइड पे ही जीरो होगा. यानी कि दिस सिग्नल विल बी अ कॉजल सिग्नल. इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. इसका कोफिशिएंट क्या है? ए, 1 में ए, फिर ए स्क्वायर, फिर ए क्यूब एंड सो ऑन. ठीक है, सो दिस विल बी द सिग्नल. जीरो यहाँ पर हो जाएगा. ओके, सो इट मीन्स दैट वी कैन राइट इट एज a raised to power n when n is greater than equal to 0, okay, or 0 when n is less than 0, or simply we can write it as a raised to power n, a raised to power n. Okay, a raised to power n. Next, let us suppose there is one signal x1n is equal to half raised to power n un, half raised to power n un, and x2n is equal to 1 by 3 raised to power n un. Okay, and we need to find out its convolution. ठीक है, दो सिग्नल्स हमें गिवन है टाइम डोमेन में और इसका कन्वोल्यूशन है.
we need to find out its convolution. Convolution सिग्नल. तो we know that कि अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में दोनों को कन्वर्ट कर दें, then the convolution process changes to the multiplication thing. तो हम इसको पहले फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देंगे, यानी इसका DTFT लिखेंगे. DTFT मैंने बताया इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है 1/1 माइनस हाफ e raised to power minus j ओमेगा. ये इसका आ जाएगा x2 ओमेगा will be 1/1 minus 1/3 e raised to power minus j ओमेगा. ये इसका आ जाएगा. ओके, और इसका कन्वोल्यूशन निकालना है, यानी कि हमें ये निकालना है x1 convolution with x2 and what will be this? This will be Fourier inverse of multiplication of x omega, x1 omega and x2 omega. दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि Fourier transform of Fourier inverse of मल्टीप्लाई कर देंगे 1 minus 1/2 e raised to power minus j omega और 1 minus 1/3 e raised to power minus j omega. ठीक है, अब तक आप इसको करते ही आए. फोरियर इनवर्स अगर इन दोनों का निकालना है, यानी कि हमें क्या करना है, फोरियर इनवर्स इन दोनों का निकालना है, यानी कि हमें इसका वो करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन करना. ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, इसके पार्शियल फ्रैक्शन, लेट अस सपोज इट इज इक्वल टू a by this thing plus b by this thing, this factor. पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए. a और b की वैल्यू निकाल लेंगे. जब हम a और b की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3 1 minus 1/2 e raised to power minus j omega और इस b की वैल्यू है -2 यानी 1 minus 3 e raised to power minus j omega. And what will be the convolution? ये क्या होगा? It is Fourier inverse of this thing. इसका फोरियर इनवर्स निकाल देंगे तो फोरियर इनवर्स क्या आएगा 3 और यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है, यानी कि हाफ रेज़्ड टू पावर n un. ये इसका फोरियर इनवर्स हो जाएगा और इसका फोरियर इनवर्स क्या होगा -2 1/3 रेज़्ड टू पावर n. So this will be Fourier transformation. Okay. This will be the convolution of given question. We have a signal जिसका DTFT निकालना है. जिसका DTFT निकालना है, DTFT निकालना है इससे n 3 raised to power minus n u. Suppose ये सिग्नल, ठीक है, इसका DTFT निकालना है. DTFT मीन्स इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है. डिस्क्रीट टाइम सिग्नल गिवन है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो हमें जैसे ही दिख रहा है कि ये n से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स दैट वी हैव टू यूज द डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी. डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर जैसे ही n से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट मीन्स दैट विल बी डिफरेंशिएशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन लाइक j d omega by dt. किसका? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ विच सिग्नल? ये वाला सिग्नल minus n. ठीक है, और -n un का हमारा पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है. व्हाट इज दैट? उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा?
डी बाई डी ओमेगा ऑफ, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1/1 माइनस 3 ई रेज़ टू पावर माइनस j, ये तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, हमारे पास रिजल्ट है 3 ई रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 ई रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा रेज़ टू पावर 2। अगर सपोज ये बस यहाँ पे जो है माइनस है, ठीक है, माइनस साइड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी ये j ओमेगा, क्योंकि n से मल्टीप्लाई हो रहा है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ हमें देना पड़ेगा 3 रेज़ टू पावर माइनस n u ऑफ माइनस n। अब u ऑफ माइनस n का क्या होगा, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ये होगा 1/d बाई डी ओमेगा 1 माइनस 1। अब यहाँ पे माइनस है ना, तो इस वजह से यहाँ पे हमें ओमेगा को रिप्लेस करना पड़ेगा माइनस ओमेगा से, ठीक है। इन्वर्जन प्रॉपर्टी जब हमने करी थी तो ओमेगा को हम रिप्लेस करते हैं माइनस ओमेगा से, अगर यहाँ पे माइनस हो, ठीक है। सो इट मीन्स दैट इट विल बी j d बाई डी ओमेगा ऑफ 1/1 माइनस 3 ई रेज़ टू पावर j ओमेगा। ओमेगा को हमने रिप्लेस कर दिया माइनस ओमेगा से, तो ये आ जाएगा। फिर जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 3 ई रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा माइनस डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 ई रेज़ टू पावर j ओमेगा रेज़ टू पावर स्क्वायर, ठीक। अगर हमारे पास ये सपोज हमको फुल ट्रांसफॉर्म निकालना है, 1/4 यानी DTFT निकालना है 1/4 मॉड ऑफ n माइनस 2, इसका निकालना, ठीक है, मॉड ऑफ n माइनस 2। तो हमको पता ही है यहाँ पे मॉड ऑफ n माइनस 2 है, यानी कि शिफ्ट हो रहा है 2 यूनिट से, तो टाइम शिफ्टिंग मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई विद अ फेज फैक्टर ऑफ e रेज़ टू पावर 2। किसमें, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/4 मॉड ऑफ n, ठीक है। टाइम शिफ्टिंग, इसमें हमने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज की, ठीक। ये सब आपको याद होना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी से क्या होता है और अप्लाई करने भी होना चाहिए, ओके। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अब इसका क्या होगा, ई रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा, बाय डेफिनेशन वी कैन राइट इट एज, अब ये पॉजिटिव साइड पे भी होगा सम, इसका नेगेटिव साइड, यानी समेशन 1/4 ई रेज़ टू पावर माइनस j, ओके। ठीक है, इसका सम करेंगे तो ये आएगा, और इसका सम ये वाला फैक्टर है पहले से ही, यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस थिंग विल बी दिस थिंग।